Ladies and gentlemen, a final attendance of the awardees. We're just checking if everybody's here with us. So, we are beginning with the appreciation awards for best performance to SCBs. Tamil Nadu is already here. Gujarat, are you here? Gujarat? Okay. The Punjab State Cooperative Bank, the final attendance, please. Yes. 2 representatives, okay. Only 2 are allowed. Moving on to DCCBs. The first one, Ahmedabad District Cooperative Bank, please raise. Second, Karimnagar District Cooperative Bank. Shri Rajkot District Cooperative Bank. Satara District Central Cooperative, Satara. Sir, please be seated here. They are here. Satara? Please raise your hands. Okay. The Krishna District Cooperative Central Bank. Okay. Moving on to PAX. Papinivattam Service Cooperative. Okay. Primary Agricultural Credit Society, Chopadandi. The Purushottampur Service Cooperative Society. Then awards for completion of 100 years. Tamil Nadu. Bihar State Cooperative. Bihar. Please raise your hands. Okay. Delhi State Cooperative Bank. Delhi. Karnataka State Cooperative Apex Bank. Karnataka. Then we have the DCCBs. Salem District Central Cooperative Bank, Salem. Akola Washim. Akola Washim, please raise your hands. Okay, there. So if you could come to this side, because it will be very far for you to. Okay. Akola Washim is there. Okay. Then Tiruchirappalli District. Then PAX, Vijaypura KK Bazaar. Vijaypura KK Bazaar. Sir, Vijaypura back there, वहाँ पे पीछे. बहुत दूर है, बहुत दूर. Sir, could you come to the left hand side if there is space, because बहुत दूर हो जाए. It will be very far for you. It will take a lot of time to come up on stage. Okay. Vishalpur SSML, Ahmedabad, Gujarat. Vishalpur? Okay, okay. So you have to be very quick because you are seated in a corner. Vijaydurg VKS Society. Vijaydurg. Oh my God, they're right in the corner. So you will have to come from this side and exit from that side. Just a moment, just a moment. Everyone will enter from this side, left side, and exit from right side. People who are sitting on the right will not come up from the right. Please, this is the protocol we have to follow. Please enter from this side where my podium is and exit from the other side. Please, it's a request. Okay, I repeat it in Hindi. जहां पर मेरा पोडियम है, आप सब अवॉर्डीज यहां से मंच पर आएंगे और दूसरी तरफ से मंच से नीचे उतरेंगे. मेरी तरफ से ही मंच पे आएंगे. ये प्लीज रूल आप सबको फॉलो करना है जिनके नाम अवार्ड लिस्ट में है. बहुत बहुत धन्यवाद. आगे विजयदुर्ग, आर यू हियर? विजयदुर्ग. ओके सर, कहीं भी anywhere you can please sit, leaving the first 2 rows. लेकिन there is no space actually. I'm just trying to accommodate everybody in this area. देखते हैं. Okay, okay. I have to check that podium, na? Okay, I'll check that podium. Yes, sir. We have these 2 litigants. This is Suggestions. Chairman, sir. suggestions as well as submission to the submission to the Union Minister. वो actually पहले भी लाए थे. One, two. Mic off है क्या?
चेक करो. Mic check, mic check, mic check, 1 2 1 2 1 2 1 2 mic check 1 1 2 sound check. A very good morning everyone. 1 2 1 2. Okay, thank you. Sir? Excuse me, sir. To all the awardees, it is a humble request to be quick when we take your names. You already know that your names are there in the list. It is a request from our chairman, sir, to all the awardees to be very quick when they come up on stage, because the Honorable Minister has a limited time, so we have to accommodate everybody in that time, and we have more than 20 awards. So we request the awardees to be a little quick when they come to the stage. Please be ready. It is a very humble request to the awardees, please. Thank you. One more announcement. There is a list of 34 delegates which has been identified for a one-on-one discussion with our chief guest. So all those 34 delegates, I'm sure they know who they are, because this discussion will happen with the chief guest for 7 minutes before the inaugural session ends formally. So I'm sure those 34 people know that they have a one-on-one interaction with the Honorable Minister. हमारे माननीय मंत्री जी के साथ 34 डेलीगेट्स को आइडेंटिफाई किया गया है जो डिस्कशन करेंगे उनके साथ। 7 मिनट का समय होगा हमारे पास वीआईपी लाउंज में ये डिस्कशन होगी। तो आप में से जो भी वो 34 लोग हैं जिनके नाम लिस्ट में हैं, आप प्लीज बिल्कुल तैयार रहिएगा। जब हम अनाउंसमेंट करेंगे लंच से एकदम पहले इन लोगों को, इन 34 लोगों को जिनके नाम लिस्ट में हैं, ऑनरेबल मिनिस्टर के साथ, हमारे चीफ गेस्ट के साथ वीआईपी लाउंज में डिस्कशन के लिए जाना होगा। तो आप प्लीज इसके लिए भी तैयारी रखिएगा। एज सून एज आई अनाउंस, जैसे ही अनाउंसमेंट होगी वीआईपी लाउंज में आप 34 लोग जिनके नाम हैं आप प्रोसीड करेंगे। थैंक यू।
प्लीज अपनी अपनी जगह पर बैठने की कृपा करें. लेडीज एंड जेंटलमैन, काइंडली बी सीटेड. आवर चीफ गेस्ट विल बी हियर एनी मोमेंट. किसी भी समय हमारे मुख्य अतिथि महोदय हमारे बीच पधारेंगे. बहुत जल्द वो पहुंचने वाले हैं. आप प्लीज बैठ जाएं सब लोग. जितने लोग भी खड़े हैं आप सब प्लीज बैठें. अपने मोबाइल फोन्स को साइलेंट मोड पे करें. ये हमारा निवेदन है. प्लीज अपनी अपनी जगह पर बैठने की कृपा करें. धन्यवाद. मोबाइल फोन्स ऑन साइलेंट प्लीज. आई कैन स्टिल हियर सम रिंगटोन्स. अभी भी मोबाइल्स की जो रिंगटोन्स हैं वो बज रही हैं. प्लीज आप मोबाइल फोन्स को साइलेंट पे कीजिए. ये विनम्र निवेदन है हमारा आपसे.
Any moment our chief guest will be here. Please be seated, everyone. Any moment our chief guest will be here. किसी भी समय हमारे मुख्य अतिथि महोदय हमारे बीच अब पधारेंगे. आप सब प्लीज जो लोग पीछे की तरफ खड़े हुए हैं प्लीज बैठ जाएं. जिनके पास बैठने के लिए चेयर्स नहीं है, पीछे की तरफ पूरा एरिया खाली है, आप प्लीज प्रोसीड कर सकते हैं. बहुत सी खाली कुर्सियां पीछे की तरफ हैं जो वेकेंट हैं, प्लीज आप प्रोसीड करें. Ladies and gentlemen, announcing the arrival of our chief guest, Shri Amit Shah Ji, Honorable Union Minister for Home and Cooperation. जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन. Ladies and gentlemen, please put your hands together. A big round of applause for our Honorable Chief Guest, Shri Amit Shah Ji, who finally arrived. We had been waiting for this moment very, very eagerly. Ladies and gentlemen, kindly be seated, please. कहते हैं तोड़ना है हर पिंजरा, मेरी उड़ान अभी बाकी है. तोड़ना है हर पिंजरा, मेरी उड़ान अभी बाकी है. मंजिलें जमी भर नहीं, आसमान अभी बाकी है. Ladies and gentlemen, a very, very good morning and a warm welcome to the National Conference of Rural Cooperative Banks, organized jointly by the Ministry of Cooperation, Government of India, and National Federation of State Cooperative Banks, NAFSCOP. NAFSCOP was established in May 1964 with a broad objective to facilitate the operations of state and central cooperative banks in particular, and development of short-term cooperative credit structure in general. NAFSCOP has completed 58 years of its useful services to the rural cooperative credit delivery system. NAFSCOP provides common forum to its members and its affiliates to project their achievements, focus their concerns, and promote their interests. This National Conference of Rural Cooperative Banks, including the credit cooperatives comprising of 34 state cooperative banks, 351 district central cooperative banks, and 96,575 primary agricultural credit societies, is being held to address the most crucial issues involved in rural cooperative credit and banking structure, and to evolve the strategies to strengthen the rural cooperative credit and banking structure. Today, in this national conference, we welcome our chief guest seated on the dais, Shri Amit Shah Ji, Honorable Union Minister for Home and Cooperation. A big round of applause. We welcome our guest of honor, Shri B.L. Verma, Honorable Union Minister of State for Cooperation and Development of Northeast Region. We welcome Shri Dilip Sanghani, President NCUI and Chairman IFCO. We welcome Dr. Chandrapal Singh Yadav, President, International Cooperative Alliance, Asia Pacific. We welcome Dr. Bijender Singh, Chairman, NAFED. We welcome Shri Gyanesh Kumar, Secretary, Ministry of Cooperation, Government of India. We welcome Shri Vijay Kumar, Additional Secretary and Central Registrar, Ministry of Cooperation. We welcome Shri K. Ravindra Rao, Chairman, NAFSCOP. And also Shri Bhima Subramaniam, Managing Director, NAFSCOP. Ladies and gentlemen, invoking the Spirit of the Almighty is the most auspicious way to begin the proceedings. दीप प्रज्वलन के साथ आरंभ करते हैं और हमारे मुख्य अतिथि महोदय जी से हम निवेदन करते हैं कि दीप प्रज्वलित कर विधिवत आज के कार्यक्रम की शुरुआत करने की कृपा करें. मंचासीन अन्य अतिथियों से भी हम निवेदन करते हैं कि आप भी कृपया दीप प्रज्वलन के लिए आएं. चलते हैं धरती से आकाश की ओर, प्राणी से परमात्मा की ओर, पदार्थ से सूक्ष्म की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर, अज्ञान से ज्ञान की ओर. दीप प्रज्वलन. Lamp lighting is supposed to be very, very auspicious.
ये यात्रा है हमारी अज्ञान से ज्ञान की। ये यात्रा है अंधकार से प्रकाश की। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार इस कृपा और स्नेह के लिए। Ladies and gentlemen, in order to welcome our august gathering today and set the tone for this seminar, may I request Shri Konduru Ravindra Rao, Chairman NAPSCOP, to please come forward. Shri Rao has been a leader from his student days. He provided the required leadership, dynamism, and business acumen in the working of the short-term cooperative credit structure. He is actively associated in various committees at country level and also a member on the national level cooperative federations and unions. Let's welcome our chairman, please. Zordar taaliyan. नमस्कार। माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित भाई शाह जी, राज्य सहकारी एवं उत्तर पूर्व विकास राज्य मंत्री श्री BL वर्मा जी, हमारे सहकारी आंदोलन से जुड़े हुए हमारे सीनियर लीडर्स चंद्रपाल सिंह यादव जी, दिलीप भाई संघानी जी, विजेंद्र सिंह जी, ज्ञानेश कुमार जी, श्री ज्ञानेश कुमार जी, सचिव सहकार मंत्रालय भारत सरकार, श्री विजय कुमार जी, एडिशनल सेक्रेटरी सेंट्रल कोऑपरेटिव रजिस्ट्रार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, माय मैनेजिंग डायरेक्टर बीमा सुब्रमण्यम, राज्य सहकारी बैंकों के अध्यक्ष, जिला और प्राथमिक समितियों के अध्यक्ष, MDs, CEOs, पदाधिकारी और वरिष्ठ नेता यहाँ जो मौजूद है, सभी को सरकारी सचिव सेक्रेटरीज के साथ हमारे नई मंत्रालय जो बनी है उनके सारे पदाधिकारी जो सर्विस में है, सारे सेक्रेटरीज, जॉइंट सेक्रेटरीज, डिप्टी सेक्रेटरीज and senior IAS officers who are all present here, and then सब संचालक और दोस्तों को मेरा तहे दिल से स्वागत। I also welcome people from southern part of India and northeast region. Very warm welcome to you. Good morning to you all on this August occasion. और मैं अपनी प्रस्ताव रखने से पहले सभी को रक्षाबंधन का इस त्योहार का शुभकामनाएं देता हूं सभी को। आज ग्रामीण सहकारी व्यवस्था जो सभी को मालूम है, लगभग 120 वर्ष से किसानों की सेवा में, किसानों से जुड़ी हुई है। आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है आज, क्योंकि 75 साल आज तक कोई भी सरकार इनसे पहले ये मंत्रालय के लिए सोचा नहीं, कोई विचार नहीं किया। लेकिन मैं बहुत खुश हूं, अभिनंदन करता हूं भारत सरकार को जो ये नई मंत्रालय का गठन किया है। और इस मंत्रालय का नेतृत्व अमित भाई जी से
अच्छा और कौन कर सकता है। जो सहकारी जगत से उभर कर आए हैं, आज इस पद पर है, उनको उनकी नेतृत्व में आज आशा का किरण नजर आ रहा है सहकारी व्यवस्था में। और सहकारिता संरचना में वह सहकारिता का अनूठी विशेषताओं को कार्यक्षेत्र और अवसरों के साथ साथ संरचना के सामने आने वाले मुद्दों की अच्छी जानकारी रखे हैं। आने वाले दिनों में मुझे इस क्षेत्र से बहुत उम्मीदें हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि श्री अमित भाई शाह जी के नेतृत्व में सहकारिता अपनी पूर्व गौरव फिर से हासिल करेगी। आज हम यहां उपस्थित हुए हैं, बहुत ही संतोषजनक चीज है, क्योंकि मंत्रालय बनते के साथ ही नहीं हमारे पूरा डिपार्टमेंट के साथ मंत्री जी ने जो कार्यक्रम शुरू किया है, गोई 8-9 महीने में जो काम चला है, मैं समझता हूं इससे पहले इतना तेज काम कभी हुआ नहीं। आज हम सबको एक उम्मीद, एक होप, कुछ जरूर बन जाएगा। इस व्यवस्था आगे चल के हमारे किसानों को सर्विस देने में बहुत मजबूत होने का मुझे आशा है। और जैसे कि आप जानते हैं, नैप्सकॉम अपने 58 वर्ष के इस अस्तित्व के दौरान विशेष रूप से राज्य और केंद्रीय सहकारी बैंकों के संचालन के लिए सुविधाजनक बनाने और सामान्य रूप से अल्पकालिक सहकारी ऋण संरचना के विकास के उद्देश्य से काम किया है। नैप्सकॉम ने अब करीब 6 दशकों का अपने यात्रा के दौरान कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां दर्ज किया है, जैसे शोध पत्र, अध्ययन रिपोर्ट, कार्यपत्र आदि लगभग 434 प्रकाशन शामिल हैं। ऋण सहयोग और बैंकिंग के क्षेत्रों में विभिन्न लक्षित समूहों के लिए लगभग 300 कार्यक्रम, सम्मेलन और कार्यशालाएं आयोजित की हैं। नैप्सकॉम ने महत्वपूर्ण मुद्दों पर भारत सरकार, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, नाबार्ड और भूतपूर्व प्लानिंग कमीशन को 100 से अधिक विज्ञापन सौंपे हैं और नैप्सकॉम ने उपयुक्त पॉलिसी इनिशिएटिव्स और पॉलिसी डिसीजंस जैसे रिकैपिटलाइजेशन सपोर्ट, इंटरेस्ट सबवेंशन आदि का मार्ग प्रशस्त किया है। नैप्सकॉम, मैं समझता हूं, हमारे आदरणीय मंत्री जी के नेतृत्व में नैप्सकॉम आगे चल के और भी काम अच्छा करेगा और किसानों के हित में सारे जिला बैंकों को, राज्य सहकारी बैंकों को, जिला बैंकों को, प्राथमिक समिति को मजबूत करने में अपना योगदान जरूर देगा। और नैप्सकॉम ने पिछले 40 साल पहले राज्य सहकारी बैंकों के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन पुरस्कारों का एक योजना शुरू की थी और लगभग 20 साल पहले ये पुरस्कार जिला बैंकों को और अपने प्राथमिक समिति को भी इसमें शामिल किया गया है ये योजना में। मैं समझता हूं नैप्सकॉम ने एसटीसीसी के बढ़ावा देने के लिए जितना योगदान किया है उतना किसी अन्य राष्ट्रीय सहकारी संगठन ने नहीं किया है, यह मेरा
विश्वास है, मेरा मानना है। नैप्सकॉम ने अखिल भारतीय पारस्परिक व्यवस्था योजना के तहत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले बैंकों के लिए वार्षिक प्रदर्शन पुरस्कार की भी स्थापना की है। प्रदर्शन पुरस्कारों का उद्देश्य, उसका लक्ष्य सदस्य एससीबी के बीच में एक सार्थक और स्वस्थ कंपटीशन मुकाबला को बढ़ावा देना और उनके कामकाज को गति प्रदान करने का उनका उद्देश्य है, लक्ष्य है। प्रदर्शन पुरस्कारों को भी हमारे नैप्सकॉम ने बोर्ड ने समय समय पर एक जूरी को सिलेक्ट करके उनके जरिए ये बैंकों को सेलेक्ट करके अवार्ड्स देने की प्रक्रिया कर रही है। और आज हमें एक अवसर मिला है, सभी एक जगह एक छत्र छाया के नीचे हमारी अपनी मंत्रालय और इस मंत्रालय के हमारे अपने ये सहकारिता आंदोलन से आए सो हमारे गौरव मंत्री जी है, इससे काफी उम्मीद रखते हैं। और साथ ही साथ मंत्री जी को हमारे कुछ मुद्दे जो हमारे विशेष मुद्दे हैं वो उनके सामने लाने की मैं उनसे अनुरोध करता हूं। जैसे बीआर एक्ट जो बनी है इसको हम स्वागत करते हैं, क्योंकि सारे बैंकिंग इंडस्ट्री आज जो काम कर रहा है, सारे बैंकों के जैसा हमारी भी बैंक आगे चले तो बीआर एक्ट की जरूरत है। लेकिन थोड़े छोटे छोटे चीज लाइक जैसे नए ब्रांच खोलने का और एटीएम्स खोलने का पहले जो प्रबंध था, पहले जो फैसिलिटी था, आज रिजर्व बैंक ने ले ली है। कल ही मैं सुना हूं रिजर्व बैंक ने जो एससीबी को जो अभी जिस तरह से बैंकिंग इंडस्ट्री ब्रांचेस खोलने का अवसर है उसी तरह के हमको भी दिया है। लेकिन इससे समय लगकर हमारे बिजनेस, हम ज्यादातर का बिजनेस जो है ब्रांच ना खोलने से करीब अभी 1.5 साल से कहीं भी नई ब्रांच नहीं खुल पाए, क्योंकि ये बीआर एक्ट के उसमें रिजर्व बैंक के इनिशिएटिव नहीं है। तो इसको मैं मंत्री जी से मेरी एक ही विज्ञापन है, मेरी अनुरोध है, जैसे आपने अर्बन कोऑपरेटिव्स को जो जैसे कमिटी जो लगाई है, विश्वनाथन कमिटी जो अध्ययन करके अपने रिपोर्ट दिए हैं, इस पर भी पूरी ये बीआर एक्ट के जो भी मुद्दे हैं वो सारों को एक बार एक कमिटी सेटअप करके ये सारे चीज अगर इस पर ध्यान दिया जाए तो और भी बेहतर सर्विस हमारे साथ बैंकों को देने का अवसर मिलेगा। और हमारे ऑडिटर सिलेक्शन भी पहले नाबार्ड के जरिए होता था, आज रिजर्व बैंक ने अपने अंडर में ले लिया है। ये भी जरा दिक्कत हो रही है, इससे ऑडिट होने का समय पर ऑडिट होने में जरा मुश्किलात पैदा हो रहे हैं। और छोटे मोटे और भी चीजें जैसे 2% इंटरेस्ट सबवेंशन जो है, आज यहाँ जितने भी जिला बैंक से आए हैं और सोसाइटी से आए हैं और हमारे राज्य सरकार बैंकों से आए हैं, उन सभी का एक ही विज्ञापन है। काफी रिप्रेजेंटेशंस आपको देने का उनका एक रिक्वेस्ट था, वो सारे चीज मैं कलेक्ट कर लिया हूं, आपको मैं ये सारे सौंपता हूं। इसके वजह से किसान पर बोझ पड़ना एक क्योंकि 2% इंटरेस्ट सबवेंशन से कोऑपरेटिव बैंक्स उसको आगे ले जाने में जरा तकलीफ हो जाएगा, तो इसको जरूर फिर रिवाइव करने में मैं समझता हूं मंत्री जी उस और ऑलरेडी अपने विचार लगाए हैं।
बहुत जल्द पुराना जो पहले जो फैसिलिटी था वो फिर वापस आता है करके मेरी उम्मीद है। और थोड़े और भी चीज़ें, जैसे शेयर कैपिटल जो बैंक हमारे किसान के पास जो लेते हैं और उसको हम स्टेट कोऑपरेटिव बैंक में डिपॉजिट करते हैं, उस पर 102% रिस्क वेटेज लगा हुआ है। हालांकि ये अगर फ्री में होना चाहिए, लेकिन होता है, इस पर भी ध्यान देना है। ज़्यादा वक्त नहीं है, हम सब हमारे माननीय मंत्री का संदेश सुनने के लिए इधर आए हैं। मैं एक बार फिर से ये मुद्दे जो भी हैं और जो भी हैं, मैं आपको एक रिटन रिप्रेजेंटेशन देकर आपको दे दूंगा। और एक बार फिर हमारे गौरव माननीय मंत्री जी, हमारे सहकारिता मंत्री जी और राज्य सहकारी मंत्री जी को समय लेकर यहाँ आने के लिए, हम सबको संबोधित करने के लिए आने के लिए मैं उन पर बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद। जय सहकार, जय भारत। एंड एक बात और मैं बोलना चाहता हूँ, 75 साल हुए हैं आज़ादी के, और ये जो आज़ादी का अमृत महोत्सव जो बन रहा है, मैं सभी को ये गणतंत्र दिवस का मैं आप सबको शुभकामनाएं देता हूँ। जय हिंद। अपने विचार हमारे साथ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, sir, for enlightening us with important facts. Ladies and gentlemen, we now take the opportunity of extending a token of respect and appreciation for our esteemed dignitaries seated on the dais today. May I please request Sri K. Ravindra Rao, our Chairman NAPSCOP, and Sri Bhima, MD NAPSCOP, to extend felicitations to our dignitaries now. Beginning with our Chief Guest, Honorable Union Minister of होम एंड कोऑपरेशन श्री अमित शाह जी। शुरुआत करते हैं और जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन। A token of respect from our side. Ladies and gentlemen, it is a proud moment for us. A big round of applause. We also request our Chairman, our MD, to welcome Shri B.L. Verma ji, Honorable Union Minister of State for Cooperation and Development of Northeast Region. Shri B.L. Verma ji. Shri Dilip Sanghani ji, President NCUI and Chairman IFCO. Ladies and gentlemen, please put your hands together. A big round of applause. Dr. Chandrapal Singh Yadav, President, International Cooperative Alliance, Asia Pacific. बहुत-बहुत स्वागत. Dr. Bijender Singh, Chairman, NAFED. Ladies and gentlemen, once again, a big round of applause. It is a moment of pride and delight for all of us today. Shri Gyanesh Kumar ji, Secretary, Ministry of Cooperation, Government of India. Ladies and gentlemen, please put your hands together. जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन। And Shri Vijay Kumar ji, Additional Secretary and Central Registrar, Ministry of Cooperation. A big round of applause, everyone. Thank you, Chairman sir. Thank you, MD sir.
And now, there's a special felicitation from Shri Ajay Bhai Patel, who's the chairman of Gujarat State Cooperative Bank, and this will be presented to our honorable chief guest. Ladies and gentlemen, joining us on the dais, Shri Ajay Bhai Patel, chairman from Gujarat State Cooperative Bank, extending felicitations to our respected chief guest, Shri Amit Shah ji. Thank you to our esteemed dignitaries today for gracing us with your auspicious presence today. Ladies and gentlemen, we now have the release of the NAPSCOP publication. The publication is brought out with an objective to disseminate the information on NAPSCOP in terms of its genesis, its aims, activities, and achievements during the last 58 years. May I request our honorable chief guest, Shri Amit Shah ji, to kindly release the publication. Also, may I request our other esteemed dignitaries seated on the dais to kindly please join in the launch. Ladies and gentlemen, the activities and achievements of NAPSCOP are many. A close perusal of decade-wise activities undertaken by NAPSCOP reveals that they are innumerable. जोरदार तालियों के साथ Abhinandan, a big round of applause as we release this special publication. Thank you so much. May we now request our guest of honor, Shri B.L. Verma ji, Honorable Minister of State for Cooperation, to kindly enlighten us with your thoughts and ideas today. Sir. नेप्सकॉप द्वारा आयोजित ग्रामीण सहकारी बैंकों के राष्ट्रीय सम्मेलन के अवसर पर उपस्थित भारत के यशस्वी आदरणीय गृह एवं पहले सहकारिता माननीय मंत्री जी, हमारे एनसीआई और इफ्को के अध्यक्ष आदरणीय दिलीप संघानी जी, अध्यक्ष किरपको और अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन एशिया प्रांत डॉक्टर चंद्रपाल सिंह यादव जी, भारत सरकार सचिव सहकारिता श्री ज्ञानेश कुमार जी, नेफेड के चेयरमैन डॉक्टर विजेंद्र सिंह जी, नेफेड के उपाध्यक्ष डॉक्टर सुनील सिंह जी, हमारे नेप्सकॉप के अध्यक्ष श्री कुंडली रविंद्र राव जी और एमडी नेप्सकॉप के भीमाराव सुब्रमण्यम जी, विजय कुमार जी और राज्य सहकारी बैंक, जिला केंद्रीय सहकारी बैंक, पैक्स एवं सहकारिता आंदोलन से जुड़े सभी गणमान्य देवियों सज्जनों, भारत सरकार के सभी अधिकारीगण और यहाँ पर मैं देख रहा हूँ सहकारिता से जुड़े सभी सीनियर मेरे बहनों भाइयों, आप सबका इस कार्यक्रम में हृदय से स्वागत करता हूँ। और जहाँ तक सहकारिता का सवाल है, हम सब जानते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी ने लगभग 1 वर्ष पहले भारत सरकार में सहकारिता मंत्रालय का गठन किया और सहकारिता मंत्रालय जिनके हाथों में दिया गया है, उनके नेतृत्व में हम सब मिलकर के सहकारिता आंदोलन को लगातार ऊंचाइयों पर ले जा रहे हैं। सहकारिता मंत्रालय के संबंध में मैं इतना कह सकता हूं कि जब से मंत्रालय बना है, माननीय मंत्री जी के नेतृत्व में सहकारिता से जुड़े लोगों का विश्वास जिस तरह से बढ़ा है और सहकारिता की जो व्यापकता है अच्छी तरह से हम समझते हैं। और एक पहला कार्यक्रम मंत्रालय बनने के बाद एक्चुअल और वर्चुअल जो सहकारी हमने राष्ट्रीय सम्मेलन किया था, उसमें 10 करोड़ से भी ज्यादा लोगों की जुड़ करके सहभागिता करना और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का विजन सहकार से समृद्धि, मुझे लगता है कि मिलकर के पूरा करेंगे। सम्मानित बहनों भाइयों, हम सब जानते हैं सहकारिता क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जो असीमित है। इसकी व्यापकता
जितनी हम कहें उतना कम है। और ये भी हम जानते हैं कि कहीं ना कहीं अगर हम जॉब की बात करते हैं उसकी एक लिमिटेशन होगी, लेकिन हम लोगों को रोजगार देने के लिए, काम देने के लिए सहकारिता के माध्यम से एक असीमित क्षेत्र है। और हम कह सकते हैं कि सारा जहां हमारा है तो हम कितना भी काम किसी भी क्षेत्र में कर सकते हैं। और आज इसी क्रम में इस नेप्सकाब ने ग्रामीण सहकारी बैंकों के साथ जो सम्मेलन आज कर रहे हैं, विचारों का आदान प्रदान हम लगातार शाम तक करने वाले हैं। और आज 33 राज्य सहकारी बैंक राज्य स्तर पर 2000 से ज्यादा अधिक शाखाओं के साथ 351 जिला केंद्रीय सहकारी बैंक 13,000 से अधिक शाखाओं के साथ मध्य स्तर पर और 63,000 से अधिक पैक्स के साथ जमीनी स्तर पर हम काम कर रहे हैं। ये बैंक अपने व्यापक नेटवर्क और बेजोड़ आउटरीच के साथ ग्रामीण वित्तीय संस्थाओं में से एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। ये बैंक पिरामिड के निचले हिस्से की सेवा भी करते हैं। उनके 80% से अधिक ग्राहक छोटे और सीमांत किसान रहते हैं। लेकिन वर्तमान में ग्रामीण सहकारी बैंक, चाहे वो राज्य सहकारी बैंक हो, जिला केंद्रीय सहकारी बैंक हो या पैक्स, इन तीनों स्तर पर अपने ग्राहकों की जरूरतों को पूरा करने के लिए बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। और जिस तरह से उन चुनौतियों का निवारण माननीय मंत्री जी के नेतृत्व में हुआ है, अगर मैं पैक्स के कंप्यूटर की बात कहूं, कंप्यूटरीकरण की बात कहूं, तो 63,000 से ऊपर जो हमारे पैक्स हैं एक्टिव, उनके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2,516 करोड़ रुपए हमको दिए। और इसके कंप्यूटरीकरण करने के लिए हम लगातार जिस तरह से आगे के लिए काम बढ़ा रहे हैं, और चाहे वो जिला सहकारी बैंक हो, स्टेट सहकारी बैंक हो, पैक्स हो, नाबार्ड हो, चारों को कॉमन सॉफ्टवेयर से जोड़ करके हम इसको बना रहे हैं। इससे दक्षता भी बढ़ेगी, हमारी विश्वसनीयता भी बढ़ेगी। जहां तक जेम पोर्टल का सवाल है, हम सब ने भी देखा होगा, माननीय मंत्री जी ने अभी 2-3 दिन पहले ही जेम पोर्टल ऑनबोर्डिंग के लिए उद्घाटन किया है। और हम सब जानते हैं कि विक्रेता के रूप में जेम पोर्टल पर 48 लाख से भी ज्यादा हमारी संस्थाएं उसमें रजिस्टर्ड हैं। उनसे हम सेवाएं ले सकेंगे। सस्ती दरों पर चीजें खरीदने के साथ साथ उसमें पारदर्शिता भी आएगी। इसी तरह से चीनी मिलों की भी समस्या थी, उस विसंगति को हमने दूर करने का काम किया है। पहले एफआरपी और एसएपी मूल्य का जब विषय आता था तो हमको टैक्स देना पड़ता था, लेकिन अब टैक्स देना नहीं पड़ेगा। इसी तरह से 1 से लेकर 10 करोड़ के बीच में इनकम करने वाली सहकारी हमारी समितियां थी, उनका अधिभार भी 12% से घटा करके 7% करने का काम किया है, जिससे एफपीओ के साथ हमारी समानता भी आई है। सहकारी समितियों पर न्यूनतम वैकल्पिक कर की दर को भी घटा करके 18.5% से 15% करने का काम किया है, जिससे कॉर्पोरेट सेक्टर में जो कंपनियां काम करती थी उसके मुकाबले हम ठीक से उसे कंप्यूटर के रूप में ठीक से काम कर सकते हैं। क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट के तहत गैर अनुसूचित शहरी सहकारी बैंक, राज्य सहकारी बैंक, जिला केंद्रीय सहकारी बैंक को सदस्य ऋण संस्थान के रूप में भी हमने शामिल किया है। इस सहकारी संस्थाओं को पर्याप्त, किफायती और समय पर ऋण उपलब्ध कराने में मदद हमको मिलेगी, ताकि सहकारी आधारित आर्थिक विकास मॉडल को बढ़ावा मिल सकेगा। अभी भी आरबीआई ने शहरी सहकारी बैंकों के व्यक्तिगत आवास ऋण सीमा को भी दोगुना और ग्रामीण सहकारी बैंक के ऋण के लिए व्यक्तिगत आवास ऋण सीमा को दोगुने से भी अधिक करने का काम भी हमने किया है। ग्रामीण सहकारी बैंकों के कमर्शियल रियल एस्टेट आवास क्षेत्र को ऋण देने की अनुमति प्रदान की गई है। इसी तरह से शहरी सहकारी बैंकों को अब अपने ग्राहकों को कॉमर्शियल बैंकों की तरह डोर स्टेप बैंकिंग की सुविधा भी हम दे सकते हैं, उसे अनुमति मिल गई है। इससे न केवल ग्राहक हमारे जुड़ेंगे, बैंक्स की आर्थिक गतिविधियां भी हमारी बढ़ेंगी। और साथ ही साथ हमने एजुकेशन और ट्रेनिंग की बात जो की है, हम सहकारी शिक्षा पर भी जोर दे रहे हैं। और जहां तक प्रशिक्षण का सवाल है, अब तक जो भी हमारे संस्थान प्रशिक्षण देते थे उनको हम और कैसे आधुनिकता के साथ अपडेट कर सकते हैं,
और साथ ही साथ केवल अधिकारियों कर्मचारियों की ट्रेनिंग अब नहीं होगी। हम चाहते हैं कि जो नीचे हमारी चाहे डायरेक्टर होंगे या उसके मेंबर्स होंगे, उसकी हम ट्रेनिंग तक उसको ले जाना चाहते हैं। और माननीय मंत्री जी के प्रयासों से आज जिस तरह से नई सहकारिता नीति पर हमारा विचार चल रहा है, हमारा चाहे भारत सरकार हो, राज्य सरकारें हो, केंद्र सरकार और प्रदेश के हमारे अन्य सरकारें हों, स्टेक होल्डर हमारे रहते हैं। आम जनता से हमने सुझाव भी लिए हैं, बड़ी संख्या में सुझाव आए हैं और सुझावों पर परीक्षण भी स्टार्ट हो गया है। तो मैं कह सकता हूं कि सहकारिता की नई नीति पर भी हम काफी तेजी के साथ काम कर रहे हैं। सहकारिता यूनिवर्सिटी बनाने पर भी विचार चल रहा है, माननीय मंत्री जी ने सैद्धांतिक रूप से उसकी सहमति दी है। तब मैं कह सकता हूं कि जिस तरह से एक वर्ष के अंदर ताबड़तोड़ फैसले लिए हैं, उनके परिणाम आपके सामने हैं और कुछ परिणाम आने शेष हैं जो पाइपलाइन में है। तो चूंकि हम सबको मार्गदर्शन माननीय मंत्री जी का मिलना है, तो इसलिए मैं अपनी बात को ज़्यादा विस्तार से न कहता हुआ इतना ही मैं कहूँगा कि जिस तरह से सहकारिता मंत्रालय को हमने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ लिविंग, आत्मनिर्भर भारत के मंत्र को ध्यान में रखते हुए नई सहकारिता नीति लाने का काम किया है। और उसी से हम कह सकते हैं कि आज की ये कॉन्फ्रेंस, आज के सम्मेलन, इसमें जो विचार विमर्श करके सहकारिता पर आधारित विकास के मॉडल की रूपरेखा तैयार करने में सक्षम आप होंगे, जिसके अनुसार कार्य करते हुए सहकारी बैंक अपने कार्य, व्यवसाय, आर्थिक मजबूती और आधुनिकता को बढ़ाकर वर्तमान चुनौतियों का सामना करते हुए सहकार से समृद्धि लाने में सफल होगी। अतः सम्मेलन में उपस्थित सभी गणमान्य आगंतुकों का मैं हृदय से धन्यवाद करता हूं और सहकारिता के क्षेत्र पर अपने विचार व्यक्त करें तथा अपनी सक्रियता से इसमें पूरी भागीदारी करें। और माननीय मंत्री जी के मार्गदर्शन के बाद मुझे लगता है कि हम जिस तरह से लगातार फेडरेशन और संस्थाओं के सम्मेलन हम कर रहे हैं, आगे हम तेजी के साथ में काम करेंगे और आज हम इस सम्मेलन को सफल बनाएंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सहकारिता एक असीमित क्षेत्र है। जिस कार्य को हमने शुरू किया है उसे पूरी मेहनत के साथ हम सब आगे बढ़ा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अपने विचार हम सभी के साथ आज साझा करने के लिए। Ladies and gentlemen, we have now arrived at the most important moment where we will be presenting the awards now. We begin with the Appreciation Awards for Best Performance to State Cooperative Banks during last 4 decades, and for that may I please request our Honorable Chief Guest, our Guest of Honor, and our other dignitaries on the dais to kindly please present these awards. हम निवेदन करते हैं हमारे मुख्य अतिथि महोदय से एवं मंचासीन सभी अतिथियों से कि कृपया आप इन अवार्ड्स को प्रेजेंट करने की कृपा करें। और हम शुरुआत कर रहे हैं अपनी पहली कैटेगरी के साथ, जो है एप्रिसिएशन अवार्ड फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस टू SCBs। Ladies and gentlemen, the Appreciation Award for Best Performance to State Cooperative Banks during the last 4 decades. The first name is the Tamil Nadu State Apex Cooperative Bank Limited. Please put your hands together. जोरदार तालियों का साथ सभी की ओर से। ये बहुत ही खुशी का पल है और जोरदार तालियां। The Gujarat State Cooperative Bank Limited, the Gujarat State Cooperative Bank Limited के लिए भी जोरदार तालियों का साथ। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो अच्छा कार्य आपने किया है वो ऐसे ही आगे चलता रहे, ऐसी हमारी आशा है। द पंजाब स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जोरदार तालियां पंजाब स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के लिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। Ladies and gentlemen, please put your hands together, a big round of applause. Moving on to the DCCBs, the Appreciation Award for Best Performance to District Central Cooperative Banks, DCCBs during the last 1 decade. The Ahmedabad District Cooperative Bank Limited, जोरदार तालियां इनके लिए भी।
The Ahmedabad District Cooperative Bank, only 2 representatives, और इनके बाद करीमनगर से हम निवेदन करते हैं कि आप भी सामने की तरफ आकर तैयार रहें। The Karimnagar District Cooperative Bank Limited, ladies and gentlemen, once again a big round of applause, please. हमारे सभी विजेताओं के लिए जोरदार तालियां। Many, many congratulations. Here is a proud moment. Shri Rajkot District Central Cooperative Bank Limited. Please put your hands together for Shri Rajkot District Central Cooperative Bank. The Satara District Central Cooperative Bank. 2 representatives from Satara District Central Cooperative Bank. After them, we have the Krishna District after Satara. Ladies and gentlemen, जोरदार तालियां सभी के लिए। ढेरों शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। The Krishna District Cooperative Central Bank Limited. Please put your hands together, a big round of applause for all the awardees. After this, we have the next category, which is the Appreciation Award for Best Performance to Primary Agricultural Credit Societies, PACS, during the last 1 decade. Ladies and gentlemen, Papini Vattam Service Cooperative Bank Limited. Papini Vattam. Primary Agricultural Credit Society, Chopadandi after them. Papini Vattam Service Cooperative Bank Limited, Thrissur, Kerala. बहुत बहुत शुभकामनाएं, many congratulations. Primary Agricultural Credit Society Limited, Chopadandi, Karimnagar, Telangana. Please put your hands together for them. जोरदार तालियों का साथ. Purushottampur after this. The Purushottampur Service Cooperative Society Limited, Balasore, Odisha. Ladies and gentlemen, a huge round of applause for all the awardees, please. जोरदार तालियों का साथ. We now have the award for completion of 100 years. The Tamil Nadu State Apex Cooperative Bank Limited, Tamil Nadu. Please put your hands together for Tamil Nadu for completion of 100 years. The Tamil Nadu State Apex Cooperative Bank Limited. The Bihar State Cooperative Bank Limited, Bihar, after this. आइए मंच पर the Bihar State Cooperative Bank Limited, बहुत बहुत शुभकामनाएं, और दिल्ली स्टेट इसके बाद. जोरदार तालियों का साथ सभी की ओर से, पूरे सदन की ओर से जोरदार तालियां बिहार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के लिए. द दिल्ली स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, Delhi, please. The Karnataka State Cooperative Apex Bank after Delhi. Ladies and gentlemen, many congratulations. जोरदार तालियों का साथ. Karnataka State Cooperative Apex Bank Limited. Please join us on the dais for receiving this award. After this, we have the DCCBs, और पहला नाम होगा सालेम डिस्ट्रिक्ट का. बहुत बहुत शुभकामनाएं.
So award for completion of 100 years after SCBs, we have the DCCBs, Salem District Central Cooperative Bank Limited, Tamil Nadu. Please join us on the dais. Ladies and gentlemen, once again, please put your hands together for Salem District Central Cooperative Bank Limited, Salem, Tamil Nadu. Akola Vashim after this. अकोला वाशिम डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड महाराष्ट्र, जोरदार तालियां इनके लिए भी. तिरुचिरापल्ली डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, तमिलनाडु. तिरुचिरापल्ली डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मेनी कांग्रेचुलेशंस, जोरदार तालियां. अब बारी आती है पैक्स की और सबसे पहला नाम विजयपुरा केके बाजार प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटी, विजयपुरा, कर्नाटका. लेडीज एंड जेंटलमैन, सभी अवॉर्डीज के लिए जोरदार तालियों का साथ होना चाहिए. द विशालपुर SSML, अहमदाबाद, गुजरात. विशालपुर SSML, अहमदाबाद, गुजरात. और इनके बाद विजय दुर्ग. बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई. विजय दुर्ग VKS सोसाइटी, सिंधु दुर्ग, महाराष्ट्र, जोरदार तालियां. And finally, we have the awards to ex-chairman of NAPSCOP. Ladies and gentlemen, on the dais we have Shri Dilip Sanghani ji, President NCUI and Chairman IFCO. हम चाहेंगे जोरदार तालियां इनके लिए. Shri Dilip Sanghani ji, these are the awards to ex-chairman of NAPSCOP. And Dr. Bijender Singh, Chairman NIFED. जोरदार तालियां. बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई. हर चेहरे पर नूर चढ़ा, हर दिल में खुशी समाई है. सभी विजेताओं को आज उनके अवार्ड्स की बहुत बहुत बधाई है. Ladies and gentlemen, we now have the most awaited moment, which is the inaugural speech. देश में सहकारिता के क्षेत्र को आज की आवश्यकताओं और अपेक्षाओं के अनुरूप नया स्वरूप दिए जाने का कार्य जिनके नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है, वे हैं माननीय गृह और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी. जनहित में और राष्ट्रहित में बड़े से बड़ा निर्णय लेने की आपकी क्षमता से दुनिया परिचित है. इसीलिए हम सब आपके नेतृत्व में नई आशा, नई ऊर्जा का स्पंदन महसूस कर रहे हैं. मैं निवेदन करूंगी माननीय केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी से कि इस अवसर पर हमारा मार्गदर्शन करें अपने संबोधन से. जोरदार तालियां. आज के ग्रामीण सहकारी बैंक्स और कुछ चुनिंदा पैक्स के राष्ट्रीय सम्मेलन में उपस्थित मेरे साथी श्रीमान BL वर्मा जी, NCUI के अध्यक्ष श्रीमान दिलीप सांघानी जी, नेप्सकैप के अध्यक्ष के रविंद्र राव जी, क्रूपको के अध्यक्ष चंद्रपाल जी, नाफेड के अध्यक्ष श्रीमान विजेंद्र सिंह जी, सचिव सहकारिता भारत सरकार ज्ञानेश कुमार जी, श्री भीमा सुब्रमण्यम जी, MD नेप्सकैप, और श्री विजय कुमार जी, एडिशनल सेक्रेटरी सहकारिता विभाग.
और आज देश भर से आए हुए देश के कृषि क्षेत्र के फाइनेंस की रीढ़ की हड्डी के समान सभी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स, सभी डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक्स के चेयरमैन, उनके निर्देशक बोर्ड के सदस्यगण और कुछ चुनिंदा पैक्स के सभी निर्देशकगण, आप सभी का मैं हृदय से आज बहुत बहुत उष्मा से स्वागत करना चाहता हूं। मैं सबसे पहले तो राज्य सहकारी बैंकों के राष्ट्रीय संघ को इस आयोजन के लिए बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि इस प्रकार के आयोजन न केवल एक दूसरे के साथ परिचय में वृद्धि करते हैं, बेस्ट प्रैक्टिसेस का एक्सचेंज के लिए भी ये उपयोगी होते हैं और साथ में समग्र भारत के कृषि धिराण के क्षेत्र में काम करने वाले सभी सहकारिता कार्यकर्ताओं का एक कॉमन थ्रस्ट एरिया का निर्माण करने में भी ये बहुत उपयोगी होते हैं। इतने सारे बैंक, इतने सारे डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक्स और पैक्स अलग अलग प्रकार से अलग अलग क्षेत्र में सहकारिता के सिद्धांत के आधार पर ही काम कर रहे हैं, परंतु उनके काम का थ्रस्ट एरिया, जिस चीज को लेकर आने वाले दशक में हमें आगे बढ़ना है, सहकारिता को बढ़ाने के लिए, सहकारिता के व्याप को बढ़ाने के लिए और सहकारिता के माध्यम से कृषक, कृषि और देश तीनों की समृद्धि बढ़ाने के लिए अगर वो हमारा थ्रस्ट एरिया कॉमन नहीं होता है तो परिणाम नहीं मिलते। मित्रों, लगभग 120 साल पुराना सहकारिता का हमारा आंदोलन बहुत सारी उपलब्धियां हैं उसकी। मैं मानता हूं हमने बहुत सारी उपलब्धियां प्राप्त की, परंतु इसके साथ साथ हमें यह भी आत्मचिंतन करना पड़ेगा कि बहुत सारा गंवाया भी है। भारत के सहकारिता क्षेत्र के नक्शे को एक बार आंख मूंद कर अपने मानस पटल के सामने ला दीजिए तो आपको मालूम पड़ जाएगा सहकारिता आंदोलन अनइवन हो गया है। कुछ राज्य ऐसे हैं जहां हर क्षेत्र में सहकारिता आंदोलन फला फूला, कुछ राज्य ऐसे हैं जहां सहकारिता आंदोलन संघर्ष कर रहा है और कुछ राज्य ऐसे भी हैं जहां सहकारिता आंदोलन सिर्फ किताबों में रह गया। अगर हम समग्र देश के अंदर सहकारिता आंदोलन का समविकास करने चाहते हैं, देश की हर तहसील तक, हर पंचायत तक सहकारिता आंदोलन को फैलाना चाहते हैं, उसका व्याप बढ़ाना चाहते हैं, तो हमने इसकी रणनीति अलग से सोचनी पड़ेगी और इसी प्रकार के सम्मेलनों के अंदर ही इस प्रकार की रणनीति पर विचार हो सकता है। अब भारत सरकार ने भी मोदी जी के एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय के अंतर्गत सहकारिता मंत्रालय को कृषि विभाग से अलग कर एक अलग मंत्रालय की स्थापना करने का निर्णय किया है। हालांकि सहकारिता ये ज्यादातर स्टेट सब्जेक्ट है, परंतु समग्र देश के सहकारिता के चित्र को ध्यान में रखकर सहकारिता की भावना से राज्यों को साथ में लेकर भारत सरकार का सहकारिता विभाग काफी कुछ कर सकता है। मित्रों, आज यहां पर कृषि धिराण और मुख्यत्वे शॉर्ट टर्म कृषि धिराण पर काम करने वाले लोग यहां पर उपस्थित हैं, जो फसली ऋण, जिसको हमारी सरल भाषा में कहते हैं, फसली ऋण देने वाली सारी इकाइयां तीनों स्तर की, पैक्स, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, तीनों यहां पर उपलब्ध है। उस वक्त हमने हमारे
कृषि धिराण के इस खाके को और मजबूती प्रदान करने की जरूरत है, इसका हमें एहसास होना चाहिए। मजबूती प्रदान करने के साथ साथ इसमें सुधार की भी जरूरत है, इसका भी हमें एहसास होना चाहिए और इसका व्याप भी बढ़ाना है। हर क्षेत्र के अंदर सहकारिता पहुंचे और सहकारिता के माध्यम से ही कृषि धिराण हो, इसके लिए भी हमने काम करने की जरूरत है। और मैं मानता हूं मोदी जी प्रधानमंत्री है, उससे अच्छा अनुकूल समय सहकारिता आंदोलन को मिलने वाला नहीं, क्योंकि मोदी जी का एक दृष्टिकोण है, विजन है। अगर समाज के अंतिम व्यक्ति तक अर्थतंत्र को पहुंचाना है, हमारे अर्थतंत्र के विकास के साथ साथ उसका भी विकास करना है, तो सहकारिता के अलावे, सहकारिता क्षेत्र के अलावे ये कोई नहीं कर सकता। इसलिए उन्होंने एक नया सहकारिता विभाग बना है। मित्रों, देश में लगभग 8.5 लाख सहकारी संस्थाएं हैं। इसमें क्रेडिट सोसाइटीज अलग अलग प्रकार की लगभग 1,78,000 हैं। और जहां तक एग्रीकल्चर क्रेडिट का सवाल है, 34 राज्य सहकारी बैंक्स हैं, उनकी 2000 से ज्यादा शाखाएं हैं। 351 जिला सहकारी बैंक और उसकी 14,000 शाखाएं हैं और 95,000 के आसपास पैक्स है। इसमें से 65,000 पैक्स आज अच्छे तरीके से कार्य कर रहे हैं। ये 95,000 पैक्स, 14,000 ब्रांचेस डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक्स की, 2,000 ब्रांचेस स्टेट कोऑपरेटिव बैंक की, ये सब कुल मिलाकर मिला ले तो हमारे सामने एक मजबूत आधार हमारे पुरखों ने बनाकर आज दिया है। इस बेस के आधार पर, इस नींव के आधार पर एक मजबूत इमारत आजादी के अमृत वर्ष में बनाने का हमारा संकल्प होना चाहिए। और मित्रों, मैं मानता हूं कि इसको सहकारी बैंकों के राष्ट्रीय संघ जैसी संस्था ही आगे बढ़ा सकती है। मित्रों, आज हम सब यहां आए हैं, तब मैं 2 चीजों पर बहुत मजबूती देना चाहता हूं, 2 चीजों पर विशेष रूप से आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। पैक्स हमारी सहकारिता एग्रीकल्चर क्रेडिट सिस्टम का आत्मा है। जब तक पैक्स ठीक नहीं चलते, तब तक कृषि धिराण की हमारी व्यवस्था कभी ठीक नहीं हो सकती। पैक्स ठीक चलना तो बहुत जरूरी है, इसके साथ साथ पैक्स का व्याप बढ़ना भी जरूरी है। देश में 3 लाख पंचायतें हैं और पैक्स, अच्छे चलने वाले पैक्स 65,000 है, कुल मिलाकर पैक्स 95,000 है। 95,000 को ठीक कर लेंगे ऐसा भी मानते हैं हम, तो भी 2 लाख पंचायतें ऐसी है जहां पर पैक्स का अस्तित्व नहीं है। हमारा सबसे पहला काम सभी जिला सहकारी बैंक, सभी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स का यह होना चाहिए कि हर पंचायत में पैक्स का 5 साल का एक रणनीति तैयार करना चाहिए। हर डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक ने अपने क्षेत्र के अंदर हर पंचायत में पैक्स कैसे बन सकता है, इसकी 5 साल की रणनीति बनानी चाहिए। हर स्टेट कोऑपरेटिव बैंक ने वो रणनीति का मॉनिटरिंग करना चाहिए और नाबार्ड ने भी अपनी विविध योजनाओं के साथ वो रणनीति की पुष्टि करनी चाहिए। भारत सरकार भी अनेक योजनाओं के साथ इसका समर्थन करने जाएगी और इसीलिए सबसे पहली योजना भारत सरकार ने सहकारिता मंत्रालय बनने के बाद लाई है कि पैक्स को कंप्यूटराइज कर दिया जाए। पैक्स, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक और स्टेट कोऑपरेटिव बैंक को ऑनलाइन जोड़ दिया जाए। अगर पैक्स को कंप्यूटराइज करेंगे तो उसके ह्यूमन रिसोर्सेज का, इसके मानव संसाधन बल का अपने आप अपग्रेडेशन हो जाएगा।
पैक्स को अगर कंप्यूटराइज कर देंगे तो प्रूडेंशियल नॉर्म्स जो है फाइनेंस के वो अपने आप पैक्स में अप्लाई हो जाएंगे। पैक्स को कंप्यूटराइज कर देंगे तो ऑडिट की सारी व्यवस्थाएं अपने आप आपकी अकाउंटिंग सिस्टम के अंदर आ जाएगी। अलर्ट भी जनरेट होना शुरू हो जाएंगे, अलर्ट अपने आप आपको मिल जाएंगे। ये कंप्यूटराइजेशन आप मानकर चलिएगा कि 100 मर्ज की एक दवाई है, और कंप्यूटराइजेशन तभी सफल हो सकता है जब यहां पर बैठे हुए मेरे डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन जो है इसको मन के साथ नीचे तक पहुंचाने का काम करें। ढेर सारे लोगों ने कंप्यूटराइजेशन समाप्त कर दिया है। गुजरात जैसे राज्य में लगभग हर पैक्स का कंप्यूटराइजेशन हो गया। उत्तराखंड ने भी अच्छा इनिशिएटिव, ढेर सारे राज्यों ने किया है, परंतु इसके अंदर एक वाक्यता नहीं है। एक कॉमन सॉफ्टवेयर के तहत पूरे देश की एग्रीकल्चर क्रेडिट की सिस्टम को लाना बहुत जरूरी है। जब तक ये नहीं लाते हम फिर आरबीआई का शिकायत करेंगे, इसके कोई मायने नहीं है भाई। सुधार अपने यहां से शुरू करना पड़ेगा, और मैं गारंटी देता हूं अगर हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर सुधार आता है, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर पारदर्शिता है, तो कोई सहकारिता बैंक या सहकारिता के चलती हुई पैक्स को कोई अन्याय नहीं कर सकता, इसकी मैं आपको विश्वास देता हूं। परंतु इसके साथ साथ हमने इसको आगे बढ़ाना पड़ेगा और इसकी आउटरीच को बढ़ाना पड़ेगा, पैक्स के दायरे को बढ़ाना पड़ेगा। ज्यादा से ज्यादा किसान पैक्स के दायरे में आए उस दिशा में जाना पड़ेगा, क्योंकि पैक्स आज भी किसानों के प्रति मानवीय दृष्टिकोण रखकर फाइनेंस का काम करते, वो रूथलेस फाइनेंस नहीं करते। पैक्स का मानवीय दृष्टिकोण होता है, और इस देश के किसान को मानवीय दृष्टिकोण के साथ किए गए फाइनेंस की जरूरत है, जो पैक्स ही कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। परंतु हमने हमारा व्याप बढ़ाना पड़ेगा, और इसके लिए कंप्यूटराइजेशन का जो प्रोग्राम भारत सरकार ने बनाया है, आज शाम के सेशन में इसका एक चर्चा भी पैक्स के कंप्यूटराइजेशन पर रखा हुआ है। उस पर हम सब ढंग से सोचकर भारत सरकार, नाबार्ड और स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स ने जो अपने अपने राज्य की रणनीति बनाई है, इसको सटीक तरीके से नीचे पहुंचाए, और एक रिकॉर्ड टाइम के अंदर भारत सरकार ने जो 2500 करोड़ रुपया दिया है, इसका उपयोग कर कर हम सारे पैक्स को कंप्यूटराइज कर दे, ये मेरा आप सबसे निवेदन है। दूसरी बात, पैक्स के कर्मचारियों में भी प्रोफेशनलिज्म हमने लाना पड़ेगा। आज कोई गांव ऐसा नहीं है जो पढ़े लिखे बच्चे जहां उपलब्ध नहीं है, कोई गांव ऐसा नहीं है जहां कंप्यूटर का जानकार युवा उपलब्ध नहीं है, मगर हम भी पैक्स के कर्मचारियों का अपग्रेडेशन करने के लिए हमारी मानव संसाधन नीति को, ह्यूमन रिसोर्स के अपग्रेडेशन की सिस्टम को स्ट्रेंथी करना पड़ेगा। और मेरा सभी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स के चेयरमैनों से अनुरोध है कि आप सब भी अपने अपने राज्य में इसके लिए इनिशिएटिव लें और इसके लिए आगे बढ़े। मित्रों, पैक्स को सुदृढ़ बनाने के लिए भारत सरकार ने इसके मॉडल बायलॉज बनाकर सभी राज्यों को भेजना तय किया है। लगभग सभी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, सभी डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक्स और सहकारिता से जुड़ी कई संस्थाओं को इस पर सुझाव मांगे गए थे, राज्य सरकारों के सुझाव मांगे गए। इस पर लगभग सुझाव आने का काम समाप्त हो गया है। अभी भी मैं आज के सम्मेलन में आपको कहता हूं कि हम निर्णय 15 दिन के बाद करेंगे। पैक्स के मॉडल बायलॉज सहकारिता मंत्रालय के साइट पर ऑनलाइन उपलब्ध है, उसको आपके यहां डाउनलोड करिए। आपके यहां टीम बैठकर इसका गहन अध्ययन करे और अध्ययन कर कर अपने सुझाव सहकारिता मंत्रालय को भेज दे, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। बहुत समय के बाद देश भर की सभी पैक्स का एक बायलॉज हो, इसके लिए एक इनिशिएटिव लिया गया है। मैं मानता हूं कि इस इनिशिएटिव में आप सबकी सहभागिता और सहकार दोनों होना चाहिए, तभी ये बायलॉज परिपूर्ण बनेंगे। ये बायलॉज के अंदर
हमने कई प्रकार की व्यवस्थाएं ऑटोमेटिक हो जाए ऐसा करा है। बाइलॉज को सिर्फ ये बाइलॉज के बाद पैक्स सिर्फ एग्रीकल्चर फाइनेंस करने वाली संस्था नहीं होगी, क्योंकि जब 3 लाख पैक्स बनाएंगे तो पैक्स को वायबल भी करना पड़ेगा। वायबिलिटी अगर नहीं है तो पैक्स बनाकर क्या करेंगे, पैक्स वीक हो जाएंगे। वायबिलिटी लाने के लिए ढेर सारे नए क्षेत्र खोले गए, जैसे गैस का डिस्ट्रीब्यूशन अब पैक्स कर सकते हैं ये नए बाइलॉज आने के बाद। पानी का वितरण पैक्स कर सकते हैं नए बाइलॉज आने के बाद। पीसीओ का काम पैक्स कर सकता है नए बाइलॉज आने के बाद। एफपीओ का काम वो भी पैक्स कर सकता है नए बाइलॉज आने के बाद। इस प्रकार से 22 नए काम जो हमारे परंपरागत कामों में नहीं है, इसको पैक्स के साथ जोड़ने का ये नए बाइलॉज के अंदर सुझाव लेकर भारत सरकार ने आपको भेजा है। इस पर आपका कमेंट्स चाहिए। और ये सारी भंडारण है, वितरण है, स्टोरेज का काम गांव के सभी किसानों का पैक्स कर सकते हैं। एफपीओ के नाते उनकी कृषि उपज का वितरण का काम पैक्स कर सकते हैं। ये सारी व्यवस्था को अगर हम ढंग से करते हैं तो 3 लाख पैक्स वायबल करना ये बहुत बड़ी बात नहीं है मित्रों। और मैं आपको बताता हूं, एक बार 3 लाख पैक्स का बेस बन जाता है तो कोऑपरेटिव को एक्सपांड करने से कोई नहीं रोक सकता, उसको एक्सपांड होना ही होना। और डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक के जो चेयरमैन है, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन हैं, उनको भी यह समझना चाहिए कि जितने पैक्स बढ़ेंगे, पैक्स जितने मजबूत होंगे, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक उतनी ही मजबूत होगी। जितनी डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक मजबूत होगी, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक अपने आप मजबूत हो जाएगी। तो मेरा आपसे आग्रह है और राव साहब से भी आग्रह है कि शाम के सेशन में एक 20-25 मिनट इंट्रोडक्टरी टाइम हमारे मंत्रालय को मिल जाए, जो पैक्स के नए बाइलॉज पर एक प्रेजेंटेशन बताएं। प्रेजेंटेशन तैयार है। प्रेजेंटेशन सभी लोगों के सामने होना इसलिए जरूरी है कि इस पर कमेंट्स जो आमंत्रित करने हैं तो उसको करना चाहिए। इसके साथ साथ भारत सरकार ने ग्रामीण सहकारी बैंकों को भी विस्तार करने की एक योजना बनाई है, जो जिसको कई जगह खेती बैंक कहते हैं, कई जगह अलग अलग नाम दिए हुए हैं। उनका विस्तार करने की भी योजना बनाई। ग्रामीण सहकारी बैंक आज किसान को डायरेक्ट फाइनेंस करते हैं। हमने तय किया है, अगर अभी विचार चल रहा है मगर आपके भी सोचने के लिए, ग्रामीण सहकारी बैंक भी मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म फाइनेंस पैक्स के माध्यम से कर सकते हैं। तो जो ड्यूअल रूट है फाइनेंस का, लॉन्ग टर्म फाइनेंस डायरेक्ट होता है, शॉर्ट टर्म फाइनेंस थ्रू पैक्स थ्रू डीसीबी होता है। इसकी जगह पैक्स के माध्यम से होगा तो किसान को अपनी जमीन कहीं पर भी गिरो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पैक्स के साथ पास उसके कागजात है, उसी में होगा। और लॉन्ग टर्म फाइनेंस भी लगभग 3 लाख पैक्स के माध्यम से, ग्रामीण सहकारी बैंकों के माध्यम से, और ऊपर नाबार्ड के तत्वाधान में लॉन्ग टर्म फाइनेंस भी सहकारिता क्षेत्र के साथ जुड़ जाए, इस प्रकार का हमारा प्रयास है। इसमें भी आपके सहयोग की जरूरत पड़ेगी। मित्रों, हमने बहुत अच्छा काम विगत 100 साल में किया है। मैं सच अर्थ में मानता हूं, मैं तो सहकारिता का एक कार्यकर्ता रहा हूं, मुझे मालूम है बहुत अच्छा काम कर रहा है। 100 साल पुराने पैक्स और बैंक जब यहाँ ट्रॉफी लेने आते हैं तो मन खुश हो जाता है कि 100 साल से अनेक बोर्ड बदलने के बाद भी सहकारिता भावना से एक सहकारी संस्था चलती है, वो बहुत बड़ी उपलब्धि है। और देश में कई सारे बैंक ऐसे हैं, चाहे अर्बन कोऑपरेटिव बैंक हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक हो, चाहे पैक्स हो, जो 100 साल पुराने हैं। हमने बहुत अच्छा काम किया है मगर ये पर्याप्त नहीं है। आजादी का अमृत महोत्सव है, हमने संकल्प करना चाहिए कि जो किया है इससे बहुत अच्छा अगले 100 साल में कर हमारा सहकारिता आंदोलन सदियों तक चले, इस प्रकार का मजबूत खाका भारत के अंदर खड़ा करें। और हर राज्य में इसका व्याप बढ़ाना है। लगभग पैक्स के 13 करोड़ सदस्य हैं, इसमें से 5 करोड़ सदस्य ऋण लेते हैं और पैक्स लगभग हर साल
2 लाख करोड़ से अधिक का वितरण करता है। जब पैक्स करता है तो ऑटोमेटिकली डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक और स्टेट कोऑपरेटिव बैंक 2 लाख करोड़ से, आप मान लीजिए पैक्स की संख्या 5 गुना होती है। अभी 65,000 पैक्स कार्यरत है। अगर 3 लाख चलने वाले पैक्स बना देते हैं तो ये 2 लाख करोड़ 10 लाख करोड़ तक पहुंच सकता है। यही मैं आपको आज बताने के लिए यहां पर आया हूं मित्रों। 10 लाख करोड़ के एग्रीकल्चर फाइनेंस का हमारा लक्ष्य रखना चाहिए सहकारिता के माध्यम से। और मित्रों, एक सबसे बड़ी समस्या है, कुछ पैक्स बीमार पड़ गए हैं। हमने नए बाईलॉज के अंदर इसका भी प्रोविजन सुझाया है राज्यों को कि जो बीमार पड़े हुए पैक्स है उसको एक समिति बनाकर साइड पे कर दिया जाए, नया पैक्स बनाया जाए। बीमार पैक्स को लिक्विडेट कर वो गांव के किसानों को सहकारिता के लाभों से वंचित नहीं रखना चाहिए। नया पैक्स बनाने का प्रोविजन भी कानूनन बाईलॉज के अंदर और सहकारिता कानून में, राज्यों के सहकारिता कानून में परिवर्तन से करना पड़ेगा, तब जाकर हम 3 लाख पैक्स तक पहुंच पाएंगे। मित्रों, मैंने जो आपको कहा कि 10 लाख करोड़ का हमारा फाइनेंस का लक्ष्य होना चाहिए, मगर अभी तो स्थिति ये है 92 से 22 तक हमारी गिरावट हुई है। इस बात की चिंता मुझे अकेले को करने से कुछ नहीं होता। जब तक आप लोग चिंता नहीं करोगे ये कभी भी बढ़ेगा नहीं। हम सब के लिए ये चिंता का विषय है कि एग्रीकल्चर फाइनेंस सहकारिता के माध्यम से कम होता जा रहा है। और नाबार्ड की वार्षिक रिपोर्ट के अंदर भी इसके ने बहुत चिंता व्यक्त की है। आप सभी ने उसका अध्ययन किया ही होगा, ऐसा मैं मानता हूं। मित्रों, सहकारिता विभाग ने ढेर सारे इनिशिएटिव लिए हैं। हम एक सहकारिता यूनिवर्सिटी बनाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, एक डेटाबेस बनाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, जिससे कहाँ खाली जगह है और कहाँ सहकारिता को एक्सपांड करने की जगह है वो इंगित हो जाए। आप लोगों के पास भी हो, भारत सरकार के पास भी हो, राज्य सरकार के भी पास हो। एक एक्सपोर्ट हाउस भी बनाना चाहते हैं जो पैक्स से लेकर एपेक्स तक और कई प्रकार की अनेक विध सहकारी कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं, इनके उत्पादों को एक्सपोर्ट के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म करेगी। जो हमारा ऑर्गेनिक प्रोड्यूस है किसानों का, इसके लिए भी अमूल के ब्रांड नेम के नीचे हम मार्केटिंग की व्यवस्था कर रहे हैं। हमने पैक्स के नए बाईलॉज बनाने के लिए भी ढेर सारा इनिशिएटिव लिया है। इसके साथ साथ हमने सहकारिता के अंदर एक नए प्रकार की संवाद की व्यवस्था के लिए भी सहकारिता विभाग एक प्लेटफॉर्म खड़ा कर रहा है, जिसके माध्यम से आपकी समस्याओं को यहाँ तक पहुँचाने में सरलता रहेगी, राज्य तक पहुँचाने में सरलता रहेगी। गांव से लेकर डिस्ट्रिक्ट को जोड़ते हुए, राज्य को जोड़ते हुए दिल्ली तक एक मजबूत कम्युनिकेशन का प्लेटफॉर्म भी हम बनाने जा रहे हैं। पैक्स के कंप्यूटराइजेशन की बात मैंने कर ही दी। अभी पैक्स के माध्यम से हमने जैम से खरीदी का भी निर्णय करा है, जिससे पैक्स को पारदर्शिता लाने में बहुत बड़ी सरलता रहेगी। एक सहकारी नीति भी हम बना रहे हैं, जिस पर बहुत तेजी से काम चल रहा है। काफ़ी लोगों से सुझाव मांगे गए हैं, सुझाव मिले भी है। मेरा भी आप सबसे अनुरोध है कि आप सब भी इसके लिए सुझाव जल्द से जल्द भारत सरकार को भेजिए। मैं अंत में मित्रों इतना ही कहना चाहता हूं कि इस प्रकार के अधिवेशन परिणाम लक्षी बने, ये हमारी संस्कृति के अंदर, कार्य संस्कृति के अंदर ऐड करने की जरूरत है। ये सिर्फ मिलने जुलने का माध्यम नहीं बनने चाहिए, इसमें विचार होना चाहिए, विमर्श होना चाहिए, फैसले लिए जाने चाहिए और फैसलों के अमल करने की रणनीति भी बननी चाहिए। इस प्रकार के सम्मेलन को हम परिणाम लक्षी बनाने का एक संस्कार पैदा करें, एक नई कार्य संस्कृति पैदा करें। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब ने अब तक सहकारिता के लिए काफ़ी कुछ किया है। देश के अंदर एक मजबूत नींव सहकारिता की पड़ी है, इस पर बहुत बुलंद इमारत बनाने का काम
आज़ादी के अमृत महोत्सव से, आज़ादी की शताब्दी के जो 25 साल है उसके अंदर हम करेंगे। और ये जो 3 लाख पैक्स का हमारा लक्ष्य है, वो लक्ष्य सिद्ध करने के लिए आप लोग जरूर आज से ही कार्यरत होंगे, इसका मुझे विश्वास है। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं आने वाले अच्छे समय की देकर मेरी बात को समाप्त करता हूं। वंदे मातरम। जैसा कि माननीय मुख्य अतिथि महोदय ने कहा, सहभागिता और सहकार। आजादी की अमृत महोत्सव में सहकारिता के क्षेत्र में एक मजबूत इमारत बनाने पर हम सभी को ध्यान देना है। बहुत बहुत आभार माननीय मुख्य अतिथि महोदय जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका यहाँ पधारने के लिए। अब बारी आती है धन्यवाद प्रस्ताव की। लेडीज एंड जेंटलमैन, इट इज टाइम फॉर द वोट ऑफ थैंक्स। May I please request Shri Bhima Subramaniam, Managing Director, NAFSCOP, to kindly propose the vote of thanks, please. Shri Subramaniam has been associated with NAFSCOP since 1982. He has over 45 years of experience in the areas of rural communication, rural development, agricultural credit, cooperatives, and banking, etc. Welcoming Shri Subramaniam. Honorable Union Minister for Home and Cooperation, Shri Amit Shah Ji, Honorable Union Minister of State for Cooperation and Development of NER, respectable Shri B.L. Verma Ji, Dr. Chandrapal Singh Yadav Ji, Shri Dilip Sanghani Ji, Dr. Bijendra Singh Ji, Gyanesh Kumar Ji, and Vijay Kumar Ji, Ravindra Rao Ji, my Chairman NAFSCOP. Chairman of CEOs and senior officials of state cooperative banks and district central cooperative banks, primary agriculture credit societies, senior management officials from government, RBI, NABARD, media personnel, and other dignitaries in the audience, and fellow cooperators and friends. I have the immense pleasure of proposing vote of thanks because of few facts. One is because of the fact that Honorable Prime Minister of India, who thought it most appropriate to create a new Ministry of Cooperation than actually creating it. Secondly, for entrusting the crucial responsibility of the ministry to none other than Sri Amit Shah Ji, the most effective union minister in the cabinet, because of his excellent exposure to cooperatives. As a union minister of Home and Cooperation, the initiatives taken by Sri Amit Shah Ji within the shortest period of just an year are highly commendable. Sir, I, on behalf of the entire short-term cooperative credit structure, comprising of 34 SCBs, 354 DCCBs, and around 95,000 packs, extend our heartfelt thanks to you. A message has already gone to those who have been depicting a stepmotherly treatment to cooperatives that it is no more possible. Thank you very much for creating such an environment. Some of the initiatives taken by the ministry under your leadership, ably supported by the Honorable MOS, Sri B.L. Verma Ji, and excellently executed by Secretary MOC, are the creation of the National Database for Cooperatives, initiative towards amendment to Multi-State Cooperative Societies Act 2002, which is almost a decade old, review to formulate the 2 decades old National Cooperative Policy, model bylaws to PACs, issues related to delayering by setting up a 4-member expert study team, initiating the most important studies such as the need to revitalize the defunct PACs, assessing the credit needs of the cooperatives, formulation of credit guarantee scheme for cooperatives. A credit guarantee scheme for cooperatives has been created with an allocation of 1 crore during the recent budget. The scheme aims to provide credit guarantee to loans of PACs and other primary agriculture societies. Another step is assurance to look into the HR policy for PACs. HR policy for PACs, the first ever HR policy that has been created by the National Federation of State Cooperative Banks. And also seriously considering the need to continue interest subvention schemes. And another reason is the preparation of the concept paper on National Cooperative Education and Training Scheme and inviting suggestions. The latest one in the initiatives is launching the GEM portal on 9th of this month, which is an excellent initiative by the Honorable Cooperation Minister. There are many more initiatives that the Ministry of Cooperation has taken during the 75th year of independence, Azadi Ka Amrit Mahotsav. Sir, we thank you very much again for the Har Ghar Tiranga campaign. We promote to do it
from 13th, from tomorrow onwards till 15th of this month, we also assure you towards ensuring the execution of the Har Ghar Tiranga. I also take this opportunity to thank all our well-wishers, both on the dais and audience, for their relentless support. This conference could not have been organized meaningfully but for the support of Ministry of Cooperation at various levels, media personnel, manpower from Vignan Bhavan, our event managers, and those cooperatives and cooperators associated with rural cooperative, credit and banking institutions at all levels. Last but not the least, congratulations to the award winners for their exemplary service to the small and marginal farmers through rural cooperatives. Thank you very much. Thank you very much for the opportunity given. Thank you, sir, for sharing your kind thoughts with us today. Ladies and gentlemen, as we move towards the conclusion of the inaugural session, may we request everyone to kindly rise for the national anthem, please. Thank you so much. We now request the board members of NAFSCOP to kindly proceed for discussions with the Honorable Chief Guest, Shri Amit Shah Ji, in the VIP lounge. A list of 34 delegates will now be read out by us and the others are requested to proceed for lunch. तो सभी उन 34 delegates का नाम हम announce करने जा रहे हैं. आप right hand side पर exit gate के पास इकट्ठे हो जाएं. Beginning with our chairman, our MD, Srimati Mallala Jhansi Rani, please आए. Shri Bishwajit Fukan MLA, Miss Nazuk Kumar IAS, Shri Baijnath Chandrakar, Dr. Bijender Singh ex-MLA, Shri Ajay Bhai Patel, Shri Kotecha Dollar Vardravan, Shri Kotecha Dollar, Shri Arvind Yadav, Dr. Neha Arora IAS, Shri K.